ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮਾਦਰ ਪਿਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਤਵੱਕੁਆਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਵਧਾਓ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਇਸਲਾਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਔਰ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਵਿਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਲ ਬਰੂਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਵਧਦੇ 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 ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਰਮੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੀਫੇ ਕਲਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੀਫੇ ਕਲਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਨਰਮੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਤਲ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਆਉਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾਏ ਔਰ ਅਯਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਲੌਜੀਕਲ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਅਸੂਲ ਅਪਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖਾਲਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਔਰ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਡੀਰੇਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਬਟਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਬਟਲ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੋਲ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੇ ਹਮਾਰੇ ਕਾਬਰ ਕੋ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਹੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਿਆਨ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹਾਮ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਵਾ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਦਾਵਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਿਅਤਨ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਜ਼ਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਜਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਟਸੋਐਵਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹਕੀਕਤ ਨੇ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ,
अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लानुल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, वो कमने गालां ने आए सन ना अबू तालिब कोल, तुहाडा भतीजा गालां कढ़दा है, किहड़ी गाल नबी पाक ने कढ़ी सी? कोई गाल नहीं कढ़ी, बयान हकीकत है। ऐसे तरह अगर नबी पाक ने फरमाया करीबन सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, 30 ਦੇ करीब कज़्ज़ाब और दज्जाल पैदा होंगे, सारे अपने आप ਨੂੰ नबी कहणगे। ਇਹ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ वही अली पाक ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। अगर ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਹਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਗਵੀਆਤ ਔਰ ਮੁਗੱਲਜ਼ਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਓ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਜਾਂ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। अगर मैं कदे ये गल कही है कि तुहानू आज़ादी होनी चाहिए तो उन्होंने आज़ादी नहीं होनी चाहिए, ये मेरी गलती सी, ये तो मैं रजू किया कि बेइंसाफी, ये वाकईतन बेइंसाफी है कि एक बंदे नू राइट होवे तो दूजे नू ना राइट होवे, ये बेइंसाफी की गल सी। मैं ये तो रजू किया, होर तो मैं किसी गल तो रजू नहीं किया। 100% मैं अपने किसी असूल तो नहीं हटिया। हाँ, वो मैं गल बेअसूली पे करता सी, उन्होंने मैं अपना डायरैक्शन सीधी कर ली कि वो बेअसूली गल है कि तुसीं एक नू राइट दिओ तो दूजे के मुंह ते टेप ला दिओ या उहदे ते कदगन लगा दिओ कि तू ना इज़हार करी। यह बेअसूली गल, ये तो मैं रजू किया। तो लिहाजा जे तुसीं करना चाहते हो तो करो, पाबंदी कोई नहीं, लेकिन जो अगू जवाब आवेगा उहदे जिम्मेदार फिर तुसीं हो, क्योंकि तुहाडे इन्हां लफ्ज़ां नाल अगले नूं भी तकलीफ पहुंचदी है। हाँ, मुतालबा हुंदा है साडे इन्हां लफ्ज़ां नाल अगले नूं क्यों तकलीफ पहुंचदी है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰੂਦ ਔਰ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਔਰ ਸਲਾਮ पे ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बयान करते सन तो उन्होंने पता नहीं सी हुंदा इस वही का मतलब की है। जिस बंदे ने यह आख्या कि पिछला जिहड़ा नबी पाक का दौर सी वो पहली रात के चंद की तरह है, तो यह जिहड़ा मेरा दौर है ये 14वीं के चंद की तरह है। उस बंदे ते तुसीं दरूद सलाम पढ़ना चाहते हो जिहड़ा बंदा ये कहता है कि नबी पाक की जिहड़ी बेइज्जत सी पहली जिहड़ी 5000 साल विच सी, ओहदी निस्बत यह जिहड़ी बेइज्जत है हुण वाली ਜਿਹੜੀ 1891 99 जो भी कह लो 1901 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਵਾ ਅਕਮਲ ਔਰ ਅਸ਼ਦ ਹੈ ਉਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਚੰਨ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 3000 ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਉਹ ਅਮਲ ਤਿਰਬ ਕਰਕੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਵਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਕਰੂ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਰ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਮੈਂ ਵਹਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ
एडी तारीफ तौसीफ हुसैनी साहब की बराड़ ते सिर्फ इतनी बात है, बस इतनी बात पर उसने मुझे बलवाई लिखा है, हमारे घर के एक बर्तन पे ISI लिखा है। पता नहीं हुसैनी साहब भी छेड़न वाले जान के ना मैं जो मैं जानना तो कहते लामा साहब आ गए ने, लामा साहब तो बिल्कुल किसी ने कुछ आंदे ही नहीं, चुप करके बैठे रहते ने। वो थोड़ा जिहा इन्हां दा ना इंज कर लो, पता नहीं इन्हां दी छेड़ बन गई है। इत्थों तक मिर्जाइयां ने उत्थे चीकां मारियां, उन्हें आख्या इहनूं लामा साडे सामने आखना क्यों है। मैं क्या हुसैनी साहब बस एडी गल ती इन्हां नूं पुछ छड़ो कि किसी बंदे दी तारीफ और तौसीफ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ नहीं सुन सकते ਉਹਦੇ ਨਾਲ तकलीफ ਹੁੰਦੀ है ना तकलीफ है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲ ਹਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲੇਸ ਲਾਤ ਤੇ ਲੇਸ ਲਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਵਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਥੀ, ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੰਨ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨੱਕ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਨਾਖਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਖਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਉਲਮਾ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਚੀ ਪਿੱਛੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਏ, ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਅੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਚੱਲਿਆ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ अपने बंदे है नहीं कि मुसलमान। आमिर भाई माजरत आपको मैंने रोका है। आप जब ये बात कहते हैं कि ये सवाल चूंकि किसी और का, मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि आप ये कहते हैं जी कि कादियान के अंदर सोटा डाला इन्होंने जी, बहुत कत्लो गारत की और बड़ी इनकी पावर है कादियान के अंदर, तो फिर ये लोग पाकिस्तान से कम कैसे हो गए? ये पाकिस्तान से मूवी जितने भी पाकिस्तान से मूवी हो रहे हैं, ये पाकिस्तान तो छोड़ के जाना पड़ रहा है इनको एट द एंड पे। तो आप जब ये बात कहते हैं जो जिसकी ताकत होती है वो तो अपनी तादाद में बढ़ता है, तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। और 1974 और 1984 के बाद इनकी तादाद मतलब आहिस्ता आहिस्ता कमी की तरफ आई है। और अब भी आप देखें तो अगर ये कादियान में इनका इतनी पावर थी, इतना ये जुल्म और सितम, तो ये तो इनको तो फैलना चाहिए था, क्योंकि ये तो अपनी तबलीग फैलाना चाहते हैं। तो ये फिर पाकिस्तान से इनको बाहर, आज भी ये पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, रेफ्यूजीज हैं बहुत ज्यादा। तो फिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, पहली गुजारिश ये है कि मैं अपना अति जोर इनका एक जत्था तैयार हो गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी तादाद सैकड़ों में थी या हजारों में थी, लेकिन जो यूनिटी होती है ना, वो आप 2 3 4 सोटियां लेकर, डंडे लेकर भी उनको अगर गिरा लगा देना तो उनको नहीं तोड़ा जा सकता। उनमें यूनिटी अगर हो, वो एक जैसी मतलब ताकत उनकी बन जाए, तो वो छोटी छोटी बारीक सोटियां भी हो जाए 5-7, तो वो भी बड़ी ताकतवर हो जाती हैं। तो इनमें यूनिटी बहुत थी। उसकी वजह यही है कि इनकी जो तालीम है वो इस तरह की है, वो तालीम इनको बांध के रखती है कि जब आपने अपने खलीफा की इजाज़त के बगैर बिहाइयों से बात नहीं करनी, बिहाइयों का कोई लिटरेचर नहीं पढ़ना, मुसलमानों से बात नहीं करनी, कादियान के अंदर रहकर कोई ऐसी बात नहीं करनी, कादियान से बाहर जाकर रिहाइश रखनी पड़ेगी। अगर आपको इस तरह का कोई मुंह से लफ्ज़ आपके निकला तो आपको कादियान से बाहर जाकर कादियान बदर होना पड़ेगा। इस तरह की सख्ती वाली तालीम हो तो लोग जो हैं, वो जो अंदर होते हैं, वो कल्ट होता है ना, वो ऐसे ही मुतहिद होते हैं कि अगर कोई बंदा मार भी दे, पता नहीं होता कौन मार गया, किसको मार गया। जिस तरह कुछ अर्सा पहले आपने अगर अपनी आंखों से कादियान का वो कराची का मंजर देखा है MQM की वजह से, एक लसानी जमात की वजह से, तो ऐसा ही बिल्कुल इनकी एक शक्ल थी। तो वहाँ पर इनकी एक जत्था तैयार हो गया था, वहाँ मजबूत होती जा रही थी। हर गुजरने वाले दिन के साथ इनकी फोर्स मजबूत होती जा रही थी। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास निशान हुआ कि 1947 में, क्योंकि ज़्यादा इनकी ताकत बढ़नी शुरू हुई है 1920 के बाद।
यानी 14 में तो स्प्लिट हो गए ना ये दो ग्रोहों में। 5-6 साल तो इनको अपने जो है पाँव जमाते हुए और अपने आप को समेटते हुए लग गए। 1920 के बाद ये ताकत पकड़ना शुरू हुए हैं। 20-25 सालों में इन्होंने इतनी ताकत पकड़ी है कि जिस तरह मैंने कहा कि ये लोगों को हुक्म दिया करते थे कि आप कादियान से बाहर जाकर रिहाइश रखें, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको, जिस तरह मैंने कहा कि गंजे को नाखून नहीं देने थे, 47 में जब पाकिस्तान बन गया ये वहां से इधर 47 में अगर ये पाकिस्तान इनको ना आना पड़ता और वो कादियान में जो इनका जत्था अपनी ताकत पकड़ रहा था वो सिलसिला जारी रहता। और इसीलिए ये पाकिस्तान की मुखालफत भी इसीलिए करते थे कि जो ताकत हमें यहाँ मुयस्सर है पाकिस्तान में, यहाँ पर तो इनकी तबलीग अब हिंदुओं को, सिखों को जाके गुरदासपुर में सिखों को क्या तबलीग करेंगे ये? इन्होंने तो मुसलमानों का ही दीन जो है वो बर्बाद करना है ना, मुसलमानों के दीन पर ही हमला करना है। दावा ये कसरे सलीब करनी है, फिक्रों से मिर्जाई हुआ होगा। यहाँ पर नबी के उम्मत से सारे जितने बंदे हैं ये सब नबी की उम्मत से गए हैं इस गुमराही में। बहरहाल जब पाकिस्तान बना है तो यहाँ भी आकर एक दफा फिर इनको जीरो से स्टार्ट लेना पड़ा। जिस तरह 1914 में जीरो से स्टार्ट लेना पड़ा ना, इनको 1947 में फिर जीरो से स्टार्ट लेना पड़ा। 1947 के बाद आते ही 5-6 सालों में इतनी लड़ाइयां हुई हैं मुसलमानों की और इनके वो हजारों की तादाद में जो जत्था तैयार हो गया था, इतनी लड़ाइयां हुई हैं कि मुनीर इंक्वायरी कमीशन सिर्फ उस दंगे फसाद के लिए बना था कि भाई ये क्यों हो रही हैं, लड़ाइयां क्यों हो रही हैं, कत्ल वगैरह थे, कैप्टन वो कत्ल हो गया, मेजर कत्ल हो गया अमर, ये क्यों मसले बने हैं। फिर 53 के बाद 74 में फिर इन्होंने ताकत पकड़ने की अपना यानी कोशिश तो ये कर रहे थे। बदमाश की और क्रिमिनल मेंटेलिटी वाले बंदे की एक तरकीब होती है कि जब वो ताकत पकड़ता है आहिस्ता आहिस्ता तो फिर वो अपने गिर्द उस दायरे को जो है वसी करता है और अपनी ताकत को बढ़ाता है। 74 में या आप 70s में कह लें, इतनी इन्होंने ताकत बढ़ा ली थी, ये तो सोच रहे थे कि गवर्नर पंजाब बनना है, भुट्टो को सपोर्ट करना है, उसका इलेक्शन, ये सियासी भी बातें हैं, लेकिन इसके अंदर इनका एक तशख़्ख़ुस भी आपको सामने आ रहा है। तो वो 74 में जो कुछ मुसलमानों ने आगे से रिएक्ट किया और 84 में जो पाबंदियां लग गई उसकी वजह से इनको स्टेप बैक करना पड़ा, यानी पीछे को रिवर्स गियर लग गया। पीछे हटते 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 पाबंदियां लगती गई, ना ये तबलीग कर सकते हैं, ना ये किसी के सामने जाके बात कर सकते हैं, और अगर ये बात करते हैं इनके ऊपर मुकदमात बनते हैं। तो वो हटते हटते ये कमज़ोर होना शुरू हो गया और फिर इनको पाकिस्तान से माइग्रेट करना पड़ा और अब ये ज़्यादातर बाहर के मुल्कों में धक्के खा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है जो मैंने बयान किया, वरना अगर वो गुरदासपुर वाली इनकी जो हिस्ट्री मैंने बयान किया वो जारी रहता, कभी भी कमज़ोर नहीं होते। बल्कि अब तक ये शेख बटालवी की एक आखिरी तहरीरों में से तहरीर है, वैसे तो उन्होंने इब्तदा में लिखी थी लेकिन आखिरी उसकी जो जिल्द अरसाला शाह तो सुन्ना की उसमें छपी हुई है, कादियानियत एक फितना, कभी क़यामत होगा। ये उनकी मोटी ऊपर सुर्खी लगा के ये आर्टिकल उन्होंने इसके अंदर लिखा कि ये एक फितना है जो कभी क़यामत होगा, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ मक्कर और फरेब है ना, इससे बहुत से लोगों को गुमराही और ठोकर लगने का जो चांस है वो बिल्कुल मौजूद है वहां पर। तो ये क़यामत नहीं हो सका, गुब्बारा नहीं बन सका, उसकी वजह अल्लाह ताला की अपनी मशीयत है, वो नहीं
انہوں نے کوئی کام بھی کیے ہیں, انہوں نے ان کی کوئی سرگرمیاں ہیں آپ کے نالج میں؟ جو انہوں نے پاکستان میں آ کے فرقان فورس بنائی ہے نا, وہ تو باقاعدہ انہوں نے نام دیا ہوا تھا کہ ہم کشمیر کو آزاد کروائیں. اس میں عامر بھائی وہ فرقان فورس کا جو ان کا کلیم ہے کشمیر کے ضمن میں, اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں پلیز. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو فرقان فورس بنائی تھی نا, وہ اس کا جو ظاہری روپ یعنی ماتھے پر لکھ کر لگایا ہوا تھا لو فار آل ہیٹڈ فار نن, ماتھے پر لکھ کر لگایا ہوا تھا ہم کشمیر آزاد کروائیں گے فرقان فورس سے اور قادیان واپس لیں گے. بھائی دے کے آپ خود آئے ہیں گرداسپور کو, آپ کی مہربانی سے یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. جب آپ نے وہاں پر جس طرح سے پارٹیسپیٹ کیا تھا اپنے آپ کو علیحدہ آئیڈینٹیفائی کروا کے, تو اب یہ کہتے تھے کہ ہم نے قادیان واپس لینا ہے, تو ہم مسلمانوں کا ہی فرقہ ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک تو ہم نے قادیان واپس لینا ہے, دوسرا یہ کشمیر آزاد کروانا ہے. کشمیر میں بڑا ظلم ہو گیا. 47 کے فوراً بعد آپ کو پتہ ہے 48 میں پاکستان کو لڑنا پڑا کشمیر میں جا کر. تو انہوں نے بہانہ بنایا فرقان فورس کی تیاری کا کشمیر کے لیے, کشمیر کا نام رکھ کر, لیکن دراصل وہ ایک اگر آج کی تاریخ میں ہونا, آج کی تاریخ میں تو اس کو ٹیرورسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا جاتا پاکستان میں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس طرح پاکستان نے کہ عامر بھائی پھر تو جو الزام لگاتے ہیں جماعت احمدیہ کے اوپر کہ یہ لوگ جہاد کے منکر ہیں, پھر اس کا مطلب یہ تو جہاد کرنے کو پھر سمجھتے ہیں اور انہوں نے ایک فورس بنائی. اور پاکستان کے حق میں کتنی بہترین بات ہے کہ جس کشمیر کو 1948 میں ہمیں دینا پڑا, اور اس کے اندر تو انہوں نے پھر رول بھی مطلب یہ تو ان کی پازیٹیوٹی نہیں ہے, مطلب کشمیر کے لیے بھی لڑ رہے ہیں اور جہاد بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو ان پہ الزام لگائے جاتے ہیں یہ تو اس کی اپوزٹ بات ہے. میں نے جیسے کہا ہے کہ لڑ تو نہیں رہے تھے, وہ تو صرف دکھاوا تھا نا بھائی جان. فرقان فورس کا ماتھے کے اوپر لکھ کر لگایا تھا کہ آپ نے کشمیر آزاد کروانا ہے. پیٹ کے اندر یہ تھا کہ آپ نے ربوہ میں طاقت پکڑنی ہے, ربوہ کے اندر آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. ماتھے پر یہ لگایا ہوا تھا لکھ کر کہ ہم نے کشمیر آزاد کروانا ہے. اتنی بات ہے. حالانکہ یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ بھئی ویسے تو ان کی تعلیمات کے خلاف ہے. جب ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ جہاد کرنا ہی نہیں, جہاد ہو گیا, آج سے جہاد حرام ہو گیا ہے, مسیح موعود آ گیا ہے, اس نے یضع الحرب کر دیا ہے, تو اب جہاد ختم ہے. تو ان کو تو وہ سوٹ نہیں کرتی لاجیکلی, اصولی طور پر یہ بات ان کو کہنی نہیں چاہیے تھی, لیکن ان کا کوئی اصول ہے نہیں نا. وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اصول بدلتے رہتے ہیں. کشمیر کا جب انہوں نے دعویٰ کیا, علماء نے اعتراض کیے کہ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کشمیر آزاد کروائیں گے, تو جہاد کدھر گیا؟ جو جہاد منسوخ ہو گیا وہ دوبارہ شروع ہونے لگا ہے. کیوں ڈرامہ کرتے ہو, کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ سچی بات کرو کہ تم نے یہ فورس بنائی ہے اپنی ربوہ کے اندر طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے, طاقت پکڑنے کے لیے, خام خواہ دھوکہ دینا چاہتے. لیکن وہ دور ایسا تھا, وہ پیریڈ ایسا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی مائیگریشن وہاں پہ پنجاب میں ہوئی تھی. پنجاب کے اندر ہی زیادہ ان کے لوگ تھے, اور پنجاب کے اپنے حالات اتنے دگرگوں تھے لوگوں کے, جو ادھر سے ادھر شفٹ ہو کے آئے تھے, جو یہاں تھے وہ ان کو آگے سیٹل کروانے میں, مطلب لوگوں کو اتنا ان کے اوپر انرجی لگا نہیں سکتے تھے لوگ. لیکن کچھ ہمارے علماء بالخصوص جو احراری ہیں انہوں نے ان کا خوب پیچھا کیا ہے. احراریوں کی وجہ ہی سے یہ 53 والے اور پھر 74 والا جتنا واقعہ, اس کی بیک گراؤنڈ وہی ہے. میری ایک کال آ رہی ہے, آپ بات کرنا تو انشاءاللہ. چلیں جتنی دیر تک عامر بھائی کال سن رہے ہیں, کل افضل وڑائچ صاحب بیٹھے ہوئے تھے براڈ کے اوپر, اور راجہ عطاء المنان صاحب جو ہیں وہ افضل وڑائچ صاحب سے کوئی سوال کر رہے تھے ضیاء رسول بھائی کے بارے میں, عامر نذیر بھائی کے بارے میں. حالانکہ افضل وڑائچ صاحب نے جواب جو دیا, لاجیکلی جواب تو ٹھیک تھا کہ میرا کام صرف ماڈریٹ کرنا ہے, آپ کے لوگ خود جو ہیں وہ ضیاء رسول کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, 4-5 بندے آپ کے انہوں نے خود ڈیبیٹ کی ہے. تو لاجیکلی تو بات ان کی ٹھیک ہے کہ جب آپ کے بندے خود ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور ایک بندہ جا رہا ہے, ایک آ رہا ہے, ایک آ رہا ہے, ایک جا رہا ہے, اور آپ خود ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, اور براڈ بھی آپ کی اپنی ہے, ہماری براڈ بھی نہیں ہے, اس کے اوپر آپ خود ایک بندے کو اٹھاتے ہیں, اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں, 3-4 گھنٹے آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد سارا قصور جو ہے وہ افضل وڑائچ صاحب کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ایسے بندے کو یہاں پہ بٹھایا جو
ہمارے اکابرین کی توہین کرتا ہے. حالانکہ یہ خود گفتگو کرتے ہیں. اس سے پہلے وہ ابن ماجہ صاحب ہیں, انہوں نے ضیاء رسول بھائی کے ساتھ جو بات کی ہے, گفتگو کی ہے, جس میں یہ $1000 پڑا ہے ان کو, تو ان کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے, اپنے بندوں کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے آپ کو کہ ہمارے اپنے بندے گفتگو کرتے ہیں. عامر نذیر بھائی کے ساتھ سارے کرتے ہیں بات. تو یہ مطلب وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوا تو مٹی جھاڑنا, تو وہ کام کل کر رہے تھے راجہ عطاء المنان صاحب. اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جب آپ ناکام ہو جاتے ہیں آرگومنٹس میں تو پھر اس کے بعد اس قسم کے عذر جو ہیں وہ آپ تراشنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے کی کہ فرقان فورس سے یہ سارا کچھ وہ تاریخ ہے ساری, اور ہم نے تو باقاعدہ جو اس کے اوپر پروگرام کیے تھے, سارا ثبوتوں کے ساتھ ہر چیز ثابت بھی کی تھی. جو کشمیر والا معاملہ تھا اس کے اوپر آپ دیکھ لیں, باؤنڈری کمیشن کی آپ رپورٹ پڑھ کے دیکھ لیں, منیر انکوائری کمیشن کی رپورٹ اگر آپ پڑھ لیں, یا باؤنڈری کمیشن میں جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ پڑھ لیں. یہ نیچے آپ کو مشورہ بھی دیا تھا موسیٰ صاحب نے کہ جو اگر آپ نے اس کے اوپر تحقیق کرنی ہے تو ایکچوئل سورس جو ہیں اس کے اوپر جاؤ. تو ایکچوئل سورس موسیٰ صاحب سے پوچھ لیں کہاں پہ ہیں, ان کے اوپر ہم تحقیق کر لیتے ہیں. بلکہ موسیٰ کو کال پہ اٹھا لیں, وہ آپ کو ایکچوئل سورس بتا دیتا ہے. تو یہاں پہ سامنے بیٹھ کے ایکچوئل سورس ہمیں موسیٰ صاحب دکھا دیں, اور ہم بھی آپ کو ایکچوئل سورس دکھا دیں گے. فیصلہ لوگ کر لیں گے سننے والے. نہیں, زیادہ سوال میرا یہ تھا کہ اگر یہ لوگ جہاد کے اگینسٹ ہیں تو پھر انہوں نے جہادی تنظیم بنائی کیوں؟ جیسے ہماری سائڈ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد کے اگینسٹ ہیں یہ لوگ, تو یہ مطلب ان کی خلیفہ کی سپرویژن میں وہ بنی ہے. اس کو پھر آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اگر جب یہ الزام جو ہم ان پہ لگاتے ہیں؟ نہیں, وہ ہمارے لوگ نہیں کہتے نا اویس, ہمارے لوگ تو کہیں نا اپنی طرف سے کوئی بات کریں. بھائی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ان کے مسیح موعود ہیں, انہوں نے جہاد کو حرام قرار دیا ہوا ہے نا, ہم نے تو نہیں کہا یہ بات. اگر تو ہم نے اپنی طرف سے کوئی الزام لگایا تو پھر تو یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی طرف سے ہمارے اوپر ایک الزام لگا دیا. اور بھائی یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی احمد بھائی, علی بھائی. اویس بھائی دیکھیں, ابھی جیسے بتایا نا کہ عامر بھائی بات کر رہے تھے کہ 1914 کے بعد ان کا پارٹی کا جو یہ ڈیوائیڈ ہوئی ہے, 20 میں انہوں نے طاقت پکڑی. اب 20 کی تحریریں اٹھا کے دیکھ لیں, اتنی سخت انہوں نے الفاظ استعمال کیے نا مسلمانوں کے اگینسٹ کہ جو بندہ مسیح موعود کو نہیں مانتا, اس کا تعلیم نہیں پہنچی, وہ بھی کافر. ہم نے کفر اسلام پہ سیریز کی تھی نا, تو اس میں بھی آپ نوٹ کر لیں کہ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے یہ سارا کچھ بدل دیتے ہیں. اگر فرقان فورس اور جہاد کو آپ پہلے نوٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے سرین کھلے الفاظ میں 1920 یا جتنی میں محمود الدین بشیر کی جتنی کتابیں ہیں مسلمانوں کا فرقہ ہے. بعد میں جناب آپ دیکھیں 47 کے بعد یہ جناب فرقے میں اسلام کے فرقے میں گھسنا شروع ہو گئے ہیں. حالانکہ جو کتابیں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جو قرآن پاک 1857 کا وہ پہلے والا الگ ہے, نواں ہے فہم. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ان کے ہمیں پتا چلا کہ اس کے لٹریچر یہ کہتا ہے کہ اب جہاد نہیں ہوگا. اب ان کی جماعت جو ہے, جو ان کے خلیفہ ہیں, وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی وہ ایک فورس بناتے ہیں پریکٹیکلی, دے آر گوئنگ ٹو بی پرفارم اے پریکٹیکل تھنگس, اور اس فورس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے کشمیر کے لیے. اچھا, اب میری بات سنیے یہاں پہ. اب جب کشمیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے تحریر پڑھی اس کا وہ سیاق و سباق نہیں تھا جو ہم سمجھے ہیں. ڈیفینیٹلی, کیونکہ جو ان کو فالو کر رہے ہیں بتائیں گے تو وہ بیسیکلی وہی سمجھے, کیونکہ وہ اپنے جو ان کے لیڈر ہیں ان کو وہ بائی پاس تو نہیں کر سکتے. تو علی بھائی پھر اس کا مطلب ہے یا تو ہم نے وہ تحریر صحیح نہیں سمجھی, یا پھر یہ لوگ اپنے خلیفہ کو بائی پاس کر رہے ہیں. اور یہ بات کہنا کہ وہ سوری اپنے جو بھی جن کو یہ مانتے ہیں, نبی مانتے ہیں, جو بھی مانتے ہیں, whatever, تو یہ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو یہ بات تھوڑا سا آپ نہیں سمجھتے کسی جگہ پہ ہم رکھیں اور اس کو انصاف کے تقاضے پہ تولیں گے تو یہ مطلب
अब दोनों में से एक बात खड़ी होगी कि यहाँ तो ये बात आएगी कि ये जहाद को मानते हैं नंबर 1, या फिर ये है कि जैसे जहाद को हमने इनकी किताबों से समझा वो हम समझ नहीं पाए सही तरीके से। जी अली भाई। बिल्कुल सही। वैसे भाई ये तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है ना। वो जैसे आमिर भाई बात कर रहे थे कि उनके पेट में कुछ और था, दिखावा कुछ और था। और मैं छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा। अभी आप किसी भी कादियानी जमात के बंदे को उठा के कह दें कि भाई बताओ तुम्हारे हिसाब से मैं मुसलमान हूं कि काफिर, ले वो मन जाए थे गल करना कि भाई हमें काफिर मानते कि नहीं मानते। ये मैंने इसलिए एग्जांपल दी है कि अभी भी आप इनको उठा के पूछ लें कि फुरकान फोर्स किस लिए बनी थी, ये जहाद की तरफ आ भी गए तो मेरे जनाब आप कहने का झूठ बोल रहे हैं। मैं इस पे लास्ट कमेंट यही कर सकता हूँ, ये अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी जो कल्ट है ना वो मूव कर जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जी कोई और बात कर ले। जी इसको कोई एड्रेस कर सकता है सवाल को? राजा जुल्फी भाई अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। कौन सा सवाल एड्रेस करना है? पॉइंट रखा ना थोड़ी देर पहले, बात तो यही है कि मिर्जा साहब की अगर तहरीरात आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो उन्होंने जहाद के लिए बहुत वाज़ह तौर के ऊपर उसको मना किया हुआ, ठीक है। और वो यही कहते हैं कि अब कलम के साथ होगा। लेकिन जब अगर आप बशीरुद्दीन साहब को आप देखते हैं ना, तो मैं ये बात तो ये सवाल आज उठा रहा है, मैं तो काफ़ी दफ़ा उठा रहा हूँ कि इनका हर खलीफा जोन्स है वो वक़्त की ज़रूरत के मुताबिक तालीम को चेंज करता रहा है। मतलब कि हकीम नूरुद्दीन साहब को जैसे बेहतर लगा उन्होंने वैसे मिर्जा साहब की तालीम को पेश किया, बशीरुद्दीन साहब को जैसे अच्छा लगा उन्होंने वैसे ही मिर्जा साहब की तालीम को पेश किया। और उसकी मेन वजह ये होती है कि जब हर कादियानी के दिल में ये बात बैठा दी जाती है ना कि खलीफा खुदा बनाता, तो फिर कादियानी को ये होता है कि जो खलीफा बात करेगा वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ही करेगा। और फिर जब अल्लाह का हुक्म है तो फिर वो जितने भी कादियानी वो मिर्जा साहब की तहरीरात पे नहीं जाते, फिर वो वक़्त के अपने इमाम को देखते हैं और उनका वक़्त का इमाम उनका खलीफा होता है और वो उसके अल्फाज के ऊपर लब्बैक कहते हैं। वो आज मिर्ज़ा मसरूर साहब कह दें कि ये जहाद जो उनसे हमने करने के लिए फ़लस्तीन आना, तो सारी जमात चलना शुरू हो जाएगी। बड़ी सादा और सिंपल है, वो मिर्ज़ा साहब की तहरीरात को नहीं देखेगी। तो ये बात थोड़ी सी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि ये हर वक़्त के लिहाज से अपने खलीफा के अल्फाज के ऊपर लब्बैक कहते हैं, फिर उसके लिए मिर्ज़ा साहब की तहरीरात ये लोग नहीं देखते। वो ताहिर साहब का दौर हो, सियासत से भी मिर्ज़ा साहब ने दूर रहने को बोला, ठीक है ना, लेकिन ताहिर साहब सियासत के अंदर थे। मिर्जा साहब की तहरीरात पड़ी हुई है सियासत से दूरी के ऊपर भी, ठीक है, लेकिन कर रहे थे कि बड़े साहब हम बड़े बासूल लोग हैं, आपने रजू कर लिया, हम जनाब इज्जत के साथ पीछे हट गए। वड़ाई साहब मरज़ाई थे जो आप पीछे हट गए? वड़ाई साहब तो थे ही मुसलमान ना। जिन लोगों ने मिर्जायत से इस्लाम का सफर किया, क्या आपने ये बुर्दबारी और तहम्मुल उनके मुतल्लिक दिखाया? जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, क्या उनके साथ आपने बाइकाट नहीं किया? क्या उनका आपने सोशल बाइकाट नहीं किया? क्या उनकी परसिक्यूशन नहीं की? क्या उनकी जिंदगी को अजीरन नहीं बनाया? क्या उनकी फैमिलियों को टारगेट नहीं किया? वड़ाई साहब आपने रुजू कर लिया, आपने जनाब वो एक मौक़िफ़ बदल लिया, तो हम बड़ी जनाब असूल के साथ, बड़े तहजीब के साथ और बड़े बाअदब तरीके से हम साइड पे हो गए कि वड़ाई साहब ठीक है, आप अपना रास्ता। इतने आप बाअसूल लोग हैं,
तो हिम्मत करें, सामने बैठकर ये बातें करें, सवाल करें, फिर ये इन बातों का जवाब देने का मजा भी आएगा कि जहाद इन्होंने मनसूख किया लेकिन जरूरत बहुत सारी बातें कुफर के मतलब दिए बाद में पर काफिर नहीं है, दावे ये बाद में जरूरत पड़ने पर यहाँ से काटा हुआ क्या कर दो, फिर काट दिया। मैंने एक पहले नबूत का दफा किया है नहीं किया, रात को भी वो खाना एक गलती का एआई में डाल के ना तो सुना रहे थे उधर से सब की बराबर, तो मैंने एक इसमें डाल दो यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक के बाद आमिर भाई आपका कनेक्शन ठीक नहीं है आमिर भाई। या नहीं किया सहनी साहब कहते हुए। अच्छा मेरे सिग्नल यहाँ पे कमजोर है, आवाज सही नहीं आ रही मेरी। आप ठीक आ रही है आमिर भाई, पहले वो आवाज कट रही थी। मैं कह रहा हूँ कि वो मैंने वीडियो जो अभी देखी है ना सुबह सुबह जो मुझे किसी ने भेजी है, उसमें बड़ाई साहब के बारे में भी एक एहतजाज हो रहा था, और दूसरा ये जो 3340 है ना नंबर, इसके बारे में भी वहां पर फैसला हो रहा था, करारदाद पास हो रही थी कि जिस नाम के साथ 3340 आता है ना, इनको तो सीधा ही ब्लॉक करें, इनको तो पक्का ही आप ब्लैक लिस्ट इनकी तैयार करें। ये 3340 क्या है? सूरत नंबर 33 है, आयत नंबर 40 है, और क्या है? ये कोई किसी गैंग का नंबर है, किसी को जत्थे का नंबर है? ये कुरान की आयत है, सूरत है और आयत है, खत्म नबूवत की वही आयत है जिसकी वजह से हम यहाँ पर इतनी बहस कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। ये 3340 तो वही है। बहरहाल वो वहां पर लव फॉर ऑल और हेट्रेड फॉर नन वाले करारदाद पास कर रहे थे कि इनका पक्का बाइकाट करो, इनका जो है ना वो इनको ब्लॉक करो, इनके साथ बात नहीं करनी। एनीवे मैं तो आया हूं इसलिए कि अगर वो दोबारा वड़ाई साहब उसका कोई बंदोबस्त कर सकें, उनको बुला सकें, अपनी ब्राड लगा सकें। जो 7-8 बंदे कल आपके गिर्द घेरा डाले खड़े थे, किकली कलीर दी वो डाल रहे थे, उनको बुलाएं, हमारे सामने बिठाएं उन 6-7 बंदों को। कली घोड़ी भजे तेरी बहुत मिठिया, घोड़े साढ़े ना भजाऊं पता फिर लगूगा ना। कल्ले बैठ के 6-7 बंदे किकली कलीर दी डाल सकते हैं, लेकिन वो तो जब सामने आके बैठेंगे फिर पता चलेगा ना, पता तो फिर लगूगा ना आप कितने बासूल हैं, कितने बा तहजीब हैं, कितने आप तहजीब याफ्ता और बाअदब और सुलझे हुए इंसान हैं। कल एक ने कहा था यहाँ पर कि फलां बंदे की गाली दिखा दो मैं जमात छोड़ दूंगा। इम्तियाज भाई ने कहा भाई इधर आ जा आ जा, तैयारी कर ले, मैं लगाऊं वीडियो ऑन करना। हाँ जी, हमारे भाई थे वो जमीन पे ट्रैक्टर चला रहे थे, वो बुलडोजर बड़ा नहीं होता उससे वो जमीन सीधी करवा रहे थे, तो एक बंदा वो जिनके साथ कोई झगड़ा था वो आगे कहता है जी असा जी बुलडोजर ये थले असा सिर देना है, सिर लगता है। मेरे भाई ने कहा तुसी सिर ਨੂੰ तेल शेल ला लो ਤੇ ਇਹ ट्रैक्टर ਦਾ चैन ਜਿਹਾ ਲੈ ਗਿਆ मैं सही कर ਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ सिर ਨੂੰ तेल शेल ला लो, मैं आपू चढ़ना ਉੱਤੇ ਤੇ जिन्हें जिन्हें सिर देना थले दे दियो सिर। भाई मजा तो तब आता है ना कि आप सामने आके बात करें। वहां अकेले आप वड़ाई साहब को घेर के बड़ी सफाइयां दे रहे थे, तो इधर आए वड़ाई साहब राड लगाएं और उनको बुलाएं। बराबरी के हकूक, कुछ भी नहीं मांगते हम, कुछ भी नहीं फेवर मांगते, बराबरी के हकूक। जितना टाइम आपका उतना टाइम हमारा, जो लहजा आपका वही लहजा हमारा, जिन अल्फाज का चुनाव आपका उन्हीं अल्फाज का चुनाव हमारा। कैसी बेहतरीन बात है, ये होती है बासूल बात, इसको कहते हैं बासूल। ये जो बेसूली वाली बातें हैं कि आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, हम आपके सामने
चस लेंगे, बातें कर कर के लोगों पर रोब डालेंगे अपनी पर्सनैलिटी का और अपने इस जत्थे का और अपने इस ग्रोह का, अपने इस गैंग का। ये बराबरी थोड़ी है, ये असूल थोड़ा ही है। बासूल होके बात करें, सामने आके वन ऑन वन बात करें। जितना टाइम आपका उतना ही हमारा। जो अल्फाज आपके वही अल्फाज हमारे। तो वड़ाइच साहब से असल में टाइम भी नहीं मिलता, वड़ाइच साहब रहते हैं उधर आगे हमसे, तो इनके सोने का टाइम हो रहा है, हमारे जागने का टाइम हो रहा है। हम तो अभी उठ के आए, मोबाइल पे देखा है, 10-11 घंटे से ऑफलाइन थे। अमर भाई ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚੈਨ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਲੁਈ हाँ, बस वो आने लगा हूँ मैं सिर्फ इसीलिए आया था कि अगर कोई है बात, कोई होना है, कोई करवानी है बात आमने सामने वड़ाइच साहब की, कोई नहीं बुलाओ उन्होंने ਜਿਹੜੇ बड़े बा तहजीब बन के ते बड़े बा असूल बन के कल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਲਾਣਾ, ਵਨ ਔਨ ਵਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਸਨੇ ਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਸੂਲ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਸ ਹੁਸਨੇ ਜ਼ਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਟੁਰੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਖਲੋਤੇ ਹੋ। सामने आके गल करो। अमर भाई आपको क्या लगता है इनका मुस्तकबिल अच्छा नहीं है जमात अहमदिया? भाई आप खुद देख लें कि ये जो खत है वो किस तरफ को जा रहा है, डिक्लाइन की तरफ जा रहा है कि ऊपर को जा रहा है। आपकी नज़र में अगर जो मैंने बातें बयान की हैं कि गुरदासपुर में ये टाक मास्टर साहब मुझे नज़र आए हैं, इनको बुला के पूछें रबवे में वो भांबड़ी वाला की नाम थी उन्होंने, वो भांबड़ी साहब क्या करवाया करते थे, क्या प्रोग्राम उनके हुआ करते थे, क्या इनके अज़ाइम थे। तो अल्लाह ताला ने ही नहीं चाहा। मैं कल भी कह रहा था ज़िया भाई को कि मिर्ज़ा साहब की सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, सबसे अच्छा फिक्रा उनका ये मुझे लगा है कि ज़मीन पे कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है आसमान पे ही होता है। ये ज़िल्लत अजीज़ भांबड़ी, हाँ बिल्कुल, वो उनके अज़ाइम इनको आके बताएंगे ज़रा अजीज़ भांबड़ी साहब के कि उनके अज़ाइम क्या थे। वो 74 वाले वाक़े में वो क्या करवाना चाहते थे स्टेशन पर, वैसे वो उनकी सरगर्मियाँ क्या थी, और रबवा में वो जो फुरकान फोर्स के बाद ये अब क्या करना चाह रहे थे, किस तरफ को जा रहे थे। आसमान से फैसला आ गया, अगर आसमान से ही ज़िल्लत आ गई है, आसमान से ही फैसला आ गया है, वो ख़त जो है वो नीचे को जा रहा है, डिक्लाइन होना शुरू हो गया है, तो मुस्तकबिल का आप खुद फैसला कर लें कि कहाँ। आप ये किस बेसिस पे कह रहे हैं? आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? 1914 के बाद देखें 1914 और 1920, जैसे आपने भी फरमाया कि 1914 के बाद इनके दरमियान इख्तलाफात बने और 1920 में इन्होंने तरक्की पकड़ना शुरू कर दी। अब ये हुआ कि ये लोग 1974 और 1984 के बाद इन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया और ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलना शुरू कर दिया। तो आमिर भाई अब तो इनके पास पावर्स फाइनेंशियली लिहाज से और इनका जो एक सिस्टम है सेंट्रलाइज सिस्टम फ्रॉम यूके, तो जब हम उसे देखते हैं और आप जब इन चीज़ों को देखते हैं तो ये तो एक्सपैंड हो रहे हैं। आप किस लिहाज से कह रहे हैं कि ये जो है ये समराइज नहीं है और ये जो है मतलब इनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है? आप किस हवाले से देख रहे हैं बात? अच्छा, वो जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके बाहर के मुल्कों में आना और यहाँ आके पैसे कमा लेना, डॉलर कमा लेना, यूरो कमा लेना, पाउंड कमा लेना, इसका मतलब फैलाव नहीं होता। इसका मतलब फैलाव नहीं होता। ये सिर्फ रहता फैलाया हुआ है, जिस तरह रहता नहीं फैला होता, ये सिर्फ रहता फैलाया हुआ है। फैलाव इनका नहीं है, बल्कि मेरी नज़र में जो भी कौम, जो भी कम्युनिटी वो पिकेट्स में तब्दील हो जाती है ना, पिकेट्स में उनकी जो आबादी या उनकी रहायशें या उनकी आबादकारी हो जाती है, उनकी ताकत ख़त्म हो जाती है। देखिए पाकिस्तान किस बेस पर बना, जहाँ पर मजबूत
पॉपुलेशन थी मुसलमानों की जिस एरिया में, जिन सूबों में, वरना पाकिस्तान जितनी आबादी अभी भी इंडिया में मुसलमानों की मौजूद है, लेकिन वो पिकेट्स में थे। अभी भी मुसलमान सिखों से कमजोर हैं, हालांकि सिखों की आबादी 2% है हिंदुस्तान में, लेकिन वो इतने मजबूत हैं क्योंकि वो हरियाणा और पंजाब में इकट्ठे हैं, और मुसलमान कोई गुजरात में, कोई हैदराबाद में, कोई बिहार में, ऐसे ही फैले हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में पिकेट्स में। तो ये भी जो कादियानी भी बाहर निकले हैं ना, पहली बात तो ये है कि इनकी पॉपुलेशन वो अब पिकेट्स में चली गई है। दूसरी बात ये है कि ये पैसों से ताकत नहीं होती, ये सिर्फ रायता फैलाया जाता है सोशल मीडिया की वजह से, एक दिखाने के लिए, जिस तरह कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि हम फैल रहे हैं। फैलाओ तो ये है ना कि इनके अकीदे में किसी दुनिया के किसी मुल्क का कोई सूबा, कोई यूनियन काउंसिल, कोई जिला, कोई मुल्क छोटा दिखाने के लिए वो अफ्रीका के 2 बादशाह भी दिखा दिए गए कि ये अफ्रीका के 2 बादशाह हैं, इन्होंने बरकत ढूंढनी है मिर्जा साहब के कपड़ों से। देखो मिर्जा साहब का लामपुरा, वो कहाँ है? एक फ्रांस में टैक्सी चलाता है, एक में अमेरिका में है। धोखा देने के लिए सोशल मीडिया पर आप किसी किस्म का भी प्रोपेगेंडा कर लें तो कर लें, फैलाव नहीं है ये फैलाव नहीं है, बल्कि ये कमजोरी है। और मेरी नज़र में ये हर गुजरने वाले दिन के साथ इनकी उल्टी गिनती जारी है। बाकी आलमुल गैब अल्लाह की ज़ात है, हम कोई दावा नहीं करते कि भाई 2030 तक 2040 तक खत्म हो जाएंगे, वल्लाहु आलम, लेकिन हमारी नज़र में ये नीचे ही जा रहे हैं हर गुजरने वाले दिन के साथ, ऐसा कोई मसला नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद भाई। आमिर भाई, मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स रखना चाहता हूँ और कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। आपने जैसे बात अभी किया ही है, किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार डिफरेंट होता है, वो जीडीपी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह अगर हम जमात अहमदिया को देखते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा पिछले 30 साल पुराना 30 साल इनके ऊपर थोड़ा सा हम देखते हैं, देखिए जो इनकी एक बर्लिन में जो इनकी इबादतगाह है 1920s में जो बनी, और देगर यूरोपीय रवाबत कम्युनिटी का जो जिक्र हमें मिलता है विकीपीडिया के ऊपर भी मिलता है और मुख्तलिफ ज़राए से इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वहीं पे हमें बरतानिया में तारीखी मिशन और विंग्स भी इनके मिलते हैं जो कि 1913 में जैसे मिशन स्टेशंस और मुख्तलिफ इनकी इबादत गाहों, अगर मैं रवानियत में कहीं मस्जिद कह जाऊँ तो उसे दरगुजर कर दीजिए, क्योंकि मैं लिखी हुई तहरीर पढ़ रहा हूँ तो इसलिए वो फिर फ्लो टूट जाता है, तो मैं इनकी इबादत गाह की बात ही कर रहा हूँ। तो इनकी जो इबादत गाह की इंतज़ामी ताल्लुकात का जिक्र जब आता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये इंडोनेशिया में भी, एशिया में और मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने अपनी रोशनासी कराई है। अगर हम देखते हैं कि जमात अहमदिया मुस्लिम AMJ अहमदिया मुस्लिम जमात जो थी, इसका फैलाव जो देखते हैं 1996 से लेकर 1925 तक, तो एक मोतबर अमूमी हवाला के मुताबिक जमात का जो है वो 200+ ममालिक में टेरिटरी में मौजूदा बताई जाती है। इनका फैलाव इस 30 सालों में सबसे ज़्यादा इन 200 ममालिक में हुआ, सबसे ज़्यादा ये इसी टर्नओवर में फैलने, इससे पहले ये इंटरनेशनली नहीं फैले थे। और मगर आबादी और तादाद का दुरुस्त अंदाज़ा मुश्किल है, क्योंकि बाज़ ममालिक में कानूनी समाजी पाबंदी और शनाख्त के मसाइल में की रीजंस हैं। इसी तरह हमें अगर इनका ढांचा देखा जाए तो इन्होंने जो अपने बहुत अहम जो काम किए हैं वो इन्होंने ये किए हैं कि इन्होंने जो इनकी रिलीजियस इबादत गाहें हैं जो इनकी, वो इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप की हैं, जो कि मुख्तलिफ ठीक है उमर जलाल भाई, मुझे पता है जो मैं लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ, इसलिए आप प्लीज़, मैं इनके ही मौत पर ज़राए से पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए ज़री बात है मैं आमिर भाई के सामने पूरा वही रखना चाहता हूँ जो लिखा हुआ है, अपनी तरफ से ऐड नहीं करना चाहता। ये कहते हैं कि इन्होंने जो इनकी इबादत गाहें हैं, जो इन्होंने स्कूल डेवलप किए और जो इन्होंने हस्पताल डेवलप किए, उनमें ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत नुमाया और बहुत ही हाई पोटेंशियल पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में वो बनाए हैं। और उसके बाद ठीक है, अच्छा, बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के सरकारी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर इम्तियाज़ और हमलों का जिक्र मिलता है, जिसमें डाटा इकट्ठा करना और आबादी खुले फैलाव की पैमाइश। अच्छा, मैं एक मिनट, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा ताकि मैं इनकी ना प्रॉपर मैं निकाल लूँ, ताकि मैं इनकी ही वेबसाइट पे चलेंगे। आमिर भाई मुझे 1 मिनट दीजिएगा ताकि मैं अपना सवाल पूरा कर लूँ आपके सामने। सवाल लेकर आते हैं, तब तक मैं गाना गुनगुना लूं। सजन ये झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। ये झूठ मत बोलें जो आप बोल रहे हैं ना, मेरे पास भी अदादो शुमार है। 2005 में बैतों की तादाद 2,09,799,
नो 1993 से शुरू करते हैं। 1993 में 2,04,308, 1994 में डबल होने लगी है 4,21,753, 1995 में फिर डबल होने लगी है 8,47,725, 96 में फिर डबल होने लगी है 16,02,721, 97 में फिर डबल होने लगी है 30,04,585, 98 में फिर डबल होने लगी है 50,04,591 बैतें, 1999 में या 99 में फिर डबल होने लगी है, पाँव जोड़ के रखो सारे, 99 में 1,08,20,288 बैतें, फिर 2000 में और डबल हुई है, बल्कि ट्रिपल हो गई है 4,13,08,975, 2001 में इसको भी डबल कर दिया गया 8,10,06,721 बैतें। 2002 में आके किसी बंदे ने झंझोड़ के कहा ओ भाई हेलो और जिस स्पीड से आप ये बता रहे हो ना, पता है दुनिया की आबादी टोटल कितनी है? 4 करोड़ से 8 लाख पहुंच आए हो, मतलब 2 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 8 लाख, 8 लाख से 16 लाख, 16 लाख से 30 लाख, 30 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 4 करोड़, 4 करोड़ से 8 करोड़। अब इसके बाद जाना कहाँ है? वो आगे देखो, दुनिया की पॉपुलेशन खत्म होने लगी है। तो फिर इनको 2002 में होश आई तो उन्होंने कहा नहीं 8 करोड़ की बजाय 2 करोड़ कर लो, 2,06,54,000 बैतें हो गई हैं। फिर 2003 में उसको और कम किया गया, 2 करोड़ से एकदम नीचे गिराया गया और 8,92,403 बैतें दिखाई गई। 2004 में वो 3 लाख पे आ गई, जो 8 लाख थी वो 3,04,910 बैतें। 2005 में 2,09,799। भाई ये मैं अखबार इनके अल-फजल से पढ़ रहा हूं, झूठों पर अल्लाह की लानत है। कहीं तो मैं स्कैन लगा देता हूं। 3 अगस्त 2005 का ये अल-फजल अखबार है, बुध के दिन का, उस पर ये लिखा हुआ है सारा। तो इसलिए मैंने कहा कि आप वो बाकी सारे दादोशुमार ले आए, मैं सिर्फ ये गाना गुनगुना लूं कि सजन बस झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहां हाथी ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। बाज आ जाओ झूठ बोलने से। ये आपने झूठे अदादो शुमार 200 मुल्कों में फैल गए, 8 करोड़ की बैतें हो गई, 16 करोड़ की बैतें, ये झूठ आपने कहां तक फैलाना है? 18 करोड़ बैतें ये मैंने आपको पढ़ के सुनाई हैं 1993 से लेकर 2005 तक। बुला के पूछे, यहाँ नीचे सारे बैठ के सुन रहे हैं, कहाँ है ये 18 करोड़ लोग, 16 करोड़ लोग कहाँ हैं? झूठ का पलंदा है। मौका दे, मैं आमिर भाई मैं आपके सामने एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग दलील रखने लगा हूँ। इस स्ट्रॉन्ग दलील को देखिए जरा। यूके चैरिटी कमीशन के मुताबिक चैरिटी नंबर 1102,949, जिसे अहमदिया मुस्लिम जमात इंटरनेशनल की 2024 वाली मार्केटिंग में 45.081 मिलियन पाउंड्स टोटल इनकम है और 52.23 मिलियंस एक्सपेंडिचर दर्ज हुए। और चैरिटी के मकासद में आलमी तबलीग, मसाजिद, स्कूल और हस्पताल, रिलीफ वगैरह शामिल हैं। ये पॉइंट तरक्की के लिहाज से इसलिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं कि ये सरकारी रेगुलेटरी के रिकॉर्ड पर हैं। और कम्युनिटी क्लेम जो है, जिसे कम्युनिटी क्लेम नहीं करती। दूसरी बात यह है कि 1995 से लेकर 2025 में जमात की ग्रोथ स्ट्रॉन्ग का एक बड़ा हिस्सा ये है कि पाकिस्तान में अहमदिया पर मखसूस कानूनी पाबंदियाँ और ऑर्डिनेंस XX, मतलब वो जो आपको पता ही है, की वजह से मजहबी शनाख्त और आबादात इजहार महदूद होते हैं। इस कानून मतन रिकॉर्ड रेफ वर्ड में मौजूद हैं और यूके होम ऑफिस, CPIN और ह्यूमन राइट्स वॉच और पाकिस्तान के NCHR रिपोर्ट्स जैसी ज़राए में इम्तियाज हमले और तशद्दुद कत्ल के अदादो कॉन्टेक्स्ट मिलते हैं। ये भी बताते हैं कि लोग क्यों कॉन्सिल्स करते हैं या असाइलम लेते हैं। तो ये तरक्की की डायरेक्ट गिनती नहीं है, लेकिन 1995 से 2025 में डायस्पोरा कम्युनिटीज़ के मजबूत होने और बैन अल-क़वामी नेटवर्क बढ़ने का एक अहम पस मंज़र भी है। ये गवर्नमेंट ऑफ यूके कहती है। और
अगर आप एविडेंस बेसिस बात करेंगे तो जो इनके की पॉइंट इन्होंने दिए हैं वो की पॉइंट्स के अंदर ये है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नंबर 1, मैं 1 बाय 1 गिनवा रहा हूँ। ग्लोबल फुटप्रिंट 200+ कंट्रीज में तंजीमी मौजूदगी का बार बार हवाला, नंबर 1। नंबर 2, बड़ी इबादत गाहें मराकस, मसलन 2003 में यूके की बड़ी इबादत गाह की ओपनिंग मीडिया के सामने। नंबर 3, मैस कन्वेंशंस, जर्मनी में 10,000 की सतह के इज्तिमाई रिपोर्टिंग। नंबर 4, मीडिया MTA जो इनको डेवलप हुआ और 2025 में वो एक ब्रॉडकास्टिंग में बड़ा फैलाव इनका किया। नंबर 6, ह्यूमैनिटेरी रीच यानी ह्यूमन फर्स्ट के जरिए आलमी रिलीफ नेटवर्क। और नंबर 7 या पता नहीं 6, वेरीफाइड फाइनेंस स्ट्रक्चर और बेहतरीन स्ट्रक्चर के लिहाज से। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं इन 6 पॉइंट्स पे? मैं यही कहता हूं कि ये सारा मैंने अर्ज किया है कि झूठ का पलंदा है। कोई ऐसी इनकी अब बात पर एतबार हम नहीं करते जिस बात से ये प्रोपोगेशन कर रहे हों कि हम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जब इनके खलीफा से बात साबित हो गई कि उन्होंने मरबियों के साथ मिलकर लोगों को ये धोखा दिया जो भी मैंने आपकी आंखों के सामने रखा, तो हम इनकी इन आदादो शुमार पर और इस तरह की कहानियों पर कैसे एतबार करें? जिस तरह मैंने कहा कि या तो इसका डॉक्यूमेंट, ये मैं कागजों में जितना मर्जी आप लिखते जाएं, अपने हाथ से कलम आपका, कागज आपका, इस पर जो मर्जी आप लिखते जाएं। क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां पर इनका ये फैलाव दिखाई देता है, जहां पर इनकी ये फाइनेंस स्ट्रक्चर इंटरनेशनल फाइनेंस स्ट्रक्चर वो बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर इनका शुमार किया। मैं फाइनेंस की मैं बात करता हूं। फाइनेंस से जो आपको मिलता है वो तो सिर्फ पैसे की बात है ना, कि आपके पास पैसा है, ठीक है, बजट आपका इतना हो गया, पैसे आपके। मैं तो कहता हूं उसमें भी एग्जैजरेशन की गई है, उसमें भी बहुत ज्यादा गुलाव किया जाता है। फाइनेंस की जो बताई जाती है ना डिजिट्स, वो भी दुरुस्त नहीं होते। यहाँ पर हमारे सामने ऐसे लोग हैं जो अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं हमारे सामने बैठ के कि मैंने इतना चंदा दिया, हम लाइनों में लगकर चंदा देते हैं। जब कोई ऑडियो लीक होती है तो बीवी कह रही होती है कि वो दरवाजे पे चंदा मांगने वाला आया है, वो 200 यूरो दें, तो वो कहते हैं, हजरत साहब कहते हैं, मैं कहाँ से दूं, मेरे पास कहाँ से आए पैसे? घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं चंदे के नाम पर कि हम कहाँ से दें। मैं किसी की प्राइवेसी लीक नहीं करना चाहता, मेरे पास अल्लाह गवाह है ऐसे मैसेजेस पड़े हुए हैं उन लोगों के जिनके बच्चे, वो खामद जो है वो पैसे दे आए तो वो कहते हैं हमें अपने बच्चों के लिए ज़रूरत है उन पैसों की जो ये जालिम उधर दे के आ गया, हमें अपने बच्चों के लिए ज़रूरत। मतलब इतनी आसानी से लोग देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक कल्ट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारा दबाव होता है मेंटली, साइकोलॉजिकली, तो लोग कहीं ना कहीं देते भी हैं पैसे। ये मैं नहीं कह रहा कि देते नहीं हैं, बिल्कुल सिफर नहीं है। जो लोग पैसे देते हैं वो इस मजबूरी के साथ रो धोकर देते हैं, ये उनको शो करते हैं बहुत ज्यादा और बड़ा चढ़ा के बयान करते हैं। लेकिन अगर ये सारी आमिर भाई मैं माजरत चाहता हूँ, 2 मिनट सिर्फ मेरे पास है, मैंने मस्जिद जाना है, जुम्मे के नमाज का टाइम है, तो अगर आप मौजूद हुए तो मैं आपसे इसको गुफ्तगू को आगे लेके चलना चाहता हूँ। कुछ और फैक्ट्स हैं मेरे पास, कुछ रियल रिपोर्ट्स हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि इसी के क्रॉस को ऐसे नहीं है। तो अगर आप ब्रॉड पर मौजूद हुए तो वेल एंड बेटर, नहीं हुए तो मैं मैक्सिमम 5 मिनट में 5-10 मिनट जरूर अदनान मतलूब साहब और मूसा साहब, आपने जितनी दफा झूठ लिखा है इससे ज्यादा दफा मेरी तरफ से वो झूठ सुन लें जो आपने सुनाया कि आपने 1993 से लेकर 2005 तक जो 16 करोड़ बहते हैं ये कहां से ली हैं और वो कहां है वो 16 करोड़। और आपके खलीफा ने हलफ मुअक्कद बाज़ाब दिया हुआ है। रावलपिंडी के एक बंदे ने कहा था कि ये खलीफा साहब सारे अदादो शुमार हमें गलत बता रहे हैं। उन्होंने कहा था लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, ये सारे के सारे आदादो शुमार सही है, मैं कसम खा के कहता हूं। आप बताओ आपके खलीफा ने झूठी कसम खाई थी कि सच्ची कसम खाई थी? लानत अल्लाह अलल काज़िबीन के नीचे आए कि नहीं आपके खलीफा साहब? या वो बंदे हमें दिखा दो कहाँ है 16 करोड़, वो बहते दिखा दो। ये जो जिसको आप झूठ कह रहे हैं, आप ऊपर आ जाए, मैं मैसेज दिखा देता हूं। बंदा मैंने नहीं दिखाना, मैं मैसेज दिखा देता हूं जिनके मेरे पास मैसेज महफूज पड़े हुए हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों पर ये पैसे लगाने थे।
ये टग्गासा उनको चढ़ गया है, ये पैसे दे आता है, हमें अपने बच्चों के लिए जरूरत है। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, वो हमारी बहन है, वो बेटी है, मैं उसको कोई तौहीन नहीं कर रहा, उसकी एक जेन्युइन बात मैं पेश कर रहा हूँ कि उनके बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, अच्छा मायारी तालीमी सिस्टम नहीं है, उनके पास वो मायार जिंदगी नहीं है जो हमारे दूसरे मुसलमानों के पास बच्चों के पास है। आपने उनको मजबूर किया हुआ है कि वो अपनी तनख्वाह से आपको 16वां हिस्सा निकाल कर दें। वो रो कर देते हैं बेचारे, मजबूर होकर देते हैं। झूठ है, मीर लतीफ की ऑडियो झूठ है जिसमें वो पीछे से मांग रहे हैं कि वो दरवाजे पे चंदे वाले आए हैं, तो कहते हैं मैं कहां से दूं 200 यूरो। वो झूठ है। कहो हमारे कान झूठ बोल रहे हैं, हमारी आंखें झूठ बोल रही हैं, ये कहो, क्योंकि तुम लोग ज़हनी मरीज हो। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, बस यही कह सकते हो, झूठ है, झूठ है, झूठ है। मैंने आपको कहा कि भाई वो आपकी आंखों के सामने आपको अखबार का हवाला दे दिया ना, ये जाके 3 अगस्त 2005 का बुध वाले दिन का अखबार पढ़ो, उसमें ये गोशवारा लिखा हुआ है। 1993 से लेकर 2005 तक जो बैतें लिखी हुई हैं, वो बैतें दिखाओ कहां पर हैं, किसने वो झूठ बोला हुआ है अल फजल अखबार में। झूठ तो वो बोलते रहे, आपके काबर और लोगों को धोखा देते रहे। 200 मुल्क ही कोई नहीं दुनिया में। अफसोस है आप लोगों की खुद फरेबी पर कि अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं। झूठ आपके खलीफा का आपके मुंह पर मैंने मल दिया है कि आपके खलीफा ने कहा मुझे कसम है अल्लाह ताला की कि ये अदादो शुमार सही हैं, और साथ हलफ मुअक्कद बाज़ाब खाया और कहा लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो अगर ये अदादो शुमार सही ना हो। बताओ वो लानत किस पर पड़ी, आपके खलीफा पर पड़ी या आपके पास वो अदादो शुमार हैं, वो बंदे हैं 16 करोड़। राजा साहब कोई जाति तो नहीं मैं कर रहा, या बंदे पेश कर दो या कह दो हमारा खलीफा लानत की जद के नीचे आ गया है, लानत पड़ गई है। क्योंकि एक बंदा कहता है कि मैं इस बात में हल्फन कहता हूं मैं सच्चा हूं, और अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो, साबित हो जाए कि मैंने झूठ बोला है तो मैंने तो लानत की जद के नीचे आ गया ना मैं। ऐसे ही आपके खलीफा ने कहा लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, अगर मैंने झूठ बोला हो तो मुझ पर लानत हो, ये अदादो शुमार सही है। हलफ मुअक्कद बाज़ाब खाया आपके खलीफा ने, अदादो शुमार सारे गलत हैं। अब बताओ क्या करना है, वो लानत किधर को जानी है, बारिश का पानी किधर को जाता है, वो लानत किधर को जा रही है। मेरा ख्याल है इंजेक्शन लगाया आके विधायक साहब के दोस्त ताहिर साहब ने कि शर्म करो, मेरे पर प्रेशर डालते हो कि मैं इनको बराडों पे क्यों लेता हूं, और खुद आके यहाँ पर बातें सुन रहे हो। ये मैसेज आपने देखे उनके, सन्नाटा छा गया नीचे। मेरा ख्याल है उन्होंने कोई दुर्रा मारा इनको कि भागो यहां से, उधर मेरी बराड पे जाके प्रेशर डालते हो मुझ पर, और इधर आके कहते हो कि खलीफा की तौहीन करवा रहे हो, बेइज्जती करवा रहे हो। मैंने देख लिया भाई ताहिर साहब आपका मैसेज, आपने सही कहा, ये आप पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप करते हैं, ये बात तो दुरुस्त है। अगर इनमें हिम्मत है आप पर प्रेशर डालने की तो खुद भी स्टैंड बाई करें, खुद भी इधर ना आए। हम तो लोगों को बता रहे हैं कि ये झूठ का पलंदा कादियानियत जब हम लोगों को बता रहे हैं तो इनको आना ही नहीं चाहिए, इनको सब्र करना चाहिए, बाहर बनेरे पे बैठकर सुनना चाहिए। लेकिन ये अपनी तरफ से तबलीग कर रहे हैं ना, इधर तो तबलीग कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। आमर झूठ बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है जैसी ये कह रहा है, ये झूठ बोल रहा है। सही आपने इनको छतरोल किया है, ले जाओ इनको भेड़ों को उधर जो यहाँ पर आके तबलीग करने आए हैं, वहां पर आपको प्रेशराइज करते हैं कि अमर नजीर को ना लो, जार रसूल का ना लो, जिसके साथ 33-40 लगता है इनको ब्लॉक करो, ये ग्रुप बड़ा खतरनाक है, ये फलाना है टमकाना है।
ले जाओ इसको उधर। अल्लाह आपको हदायत दे। ये मजहबी ग्रोह है। अमर नज़ीर उर्फ आम केन की बात कहीं डाल दी। ये क्या लिख रहा है शहजाद खुरम भाई, तो समझ नहीं आ रही। किसान भाई को समझ आ रही है? ये आपको लैंग्वेज गूंगे दी रमजान गूंगा ही जाने उसी रह के नहीं देखते ठीक लगता तो। मिर्जा साहब की तहरीर आखिरी बार गुलाम हुसैन को पढ़ाने की, मेहंदी हुसैन को पढ़ाने की कोशिश की थी। भाई आप समझ सकते हैं मिर्जा साहब ने क्या लिखा है। मिर्जा साहब के मरने के बाद वो तहरीर पढ़ी, उस पर लिखा हुआ था तकलीफ ये है कि दवाई पिलाई जाए। तो बंदा वही पढ़ सकता है ना जो उसका ताल्लुकदार हो। ये क्या कह रहा है शहजाद खुरम? बातें सिर्फ आम में कही थी कि करोड़ों हो गई। बातें सिर्फ उर्फ आम में कही थी। उर्फ आम की कहीं की बात कहीं डाल दी। अच्छा अच्छा उर्फ आम। सोएब राजा भाई तुसी सही लंबी है गल की कहना चाहता है। अच्छा ये उर्फ आम की हुंदा है जेड़ा बंदा कसम खा के कवे और हलफ मुअक्कद बाज़ाब खाए कि अल्लाह दी लानत होवे झूठियां ते, जे मैं झूठ बोलां ते अल्लाह दी लानत मेरे ते होवे। ये हलफ मुअक्कद बाज़ाब है, मुबाइला है। तुझे कहने लगे हो कि बस उर्फे आम च कह दिता है, उर्फे आम च झूठ बोले है। सदके जावा मैं मुबाला कीता है उन्होंने ते पे आंदे ने उर्फे आम च गल कर दी है। शहजाद खुरम साहब वो छड़ दो यार, अपने आप ने क्यों झूठ बोल दो। हाँ ये कह दो इश्तिहारा के रंग में कही था, जिल्ली बरूजी तौर पर इतने करोड़ लोग बताए थे। क्या क्या इनकी आंखों के सामने नहीं हमने रखा, कौन कौन सा सबूत नहीं इनकी आंखों के सामने रखा गया। अपने आप से झूठ बोलने वाले लोग। चलें सोएब राजा भाई चलें उधर, वो मैं ना वादा किया उनके साथ अपना असद बहरीन के साथ, अगर बराड उनकी बंद नहीं हुई तो हलवा खाएं। हाँ जी हलवा ही खान लगे। तुसी अपने आप नाल झूठ बोलो। हाँ पता नहीं नाम क्या है इसका। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अमर भाई सलाम अलैकुम। अमर भाई यूके में इनके दो खलीफा हैं, एक खलीफा मौजूद है तो एक तो उसने भी मेरे ख्याल है कोई 20 साल रहे हैं, तकरीबन 40 साल इनका टेन्योर हो गया। 40 साल के ऊपर 45 साल हो गया ना अभी। हाँ जी तो इधर तो अगर ये पाकिस्तान में इनको फ्रीडम नहीं मिलती तो फुल फ्रीडम है, तबलीग करें जो मर्जी करें। तो हमारी मस्जिद में आज जुमे का दिन है, 5 मस्जिदें हैं, तकरीबन हमारे 30,000 इस शहर में मुसलमान हैं। तो किसी मस्जिद में जाएं 7-8 मस्जिदें हैं और छोटी छोटी भी हैं, और तो किधर भी जाएं तो आपको बड़ी मस्जिद हुए गोरे मिल जाएंगे जो मुसलमान हुए हैं पुराने या नए भी, तो तकरीबन 2 दर्जन तो हर मस्जिद में मिल जाएंगे। तो ये भी दिखाई ना इनकी जो है ये यूके से जो क्रिश्चियन और एथियस्ट जो है कितने इन्होंने फ्री तबलीग, कोई रुकावट नहीं कुछ भी नहीं, तो कितने इन्होंने बैत फॉर्म साइन करवाए हैं गोरियों से जो इस मुल्क के जो रहने वाले हैं जो गोरे हैं। कोई दिखा दे हमें। इनका ये यकीन है कि हम सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों को जो हाँ सिर्फ उनको हम मिर्जाई बना सकते हैं, ना हम यूके के गोरे को बना सकते हैं, ना जर्मनी के डच को बना सकते हैं, ना इटली के इटालियन को, ना फ्रांस के फ्रेंच को, ना स्पेन के स्पेनिश को, किसी को हम नहीं कर सकते। ये सिर्फ पाकिस्तान के गरीब या फिर अफगानिस्तान, आजकल वो उधर तलाश किया हुआ है अफ्रीका में कोई गरीब गुरबा हुआ उसको पैसे दे के तो बैत फार्म पे साइन करा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। ये है इनका दावा, असल हकीकत इनकी ये है।
और एक और ये- मैं आपको खूबसूरत जी जी करें बात। एक बात मैं सॉरी कट कलामी नहीं करना चाहना। एक बात मैं आपको खूबसूरत एक और बताऊं कि इन गोरों की अपनी स्टडी है कि 2001 सितंबर दी 11 जब हुआ ना, उससे लेकर 2011 तक 1 लाख जो इंडिजिनस ब्रिटिश जो हैं, इंडिजिनस जो इधर के रहने वाले हैं, जो मतलब उनकी नस्लें इधर रही हैं, वो मुसलमान हुए 2001 से लेकर और 2011 तक से ज्यादा है। और 10 लाख जो है इससे ज्यादा है चर्चें जो हैं वो मुसलमानों ने खरीद कर उनको जो है मदरसे बनाए, मस्जिदें बनाई वगैरह। तो इनकी तरक्की क्या है इधर यूके में, क्या तरक्की है? अगर इनको 1914 या 13 से इधर आए हुए हैं, क्या तरक्की की है इन्होंने? सिर्फ वो पाकिस्तान से जो है असाइलम सीकर इधर लाए ना, और क्या किया इन लोगों ने? मेरा दिल करता है कि आपकी इनकी जी, अमर यूके भाई। वाली तरक्की भी जो है, मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा वक्त करके, तकलीफ झील के, थोड़ी सी मुसीबत बर्दाश्त करके ना, इनकी तरक्की भी इनकी आंखों के सामने यूके वाली भी खुद रख दें। मेरा मतलब कहने का ये है कि मैनचेस्टर में जो इनकी इबादत गाह है, जिसमें राजा साहब कहते हैं भी बाहर वो पार्किंग में 2-3 गाड़ियां खड़ी होती हैं, आज कोई कैमरामैन घलो मोबाइल नाल मुंडा आखो भी गिण के ना उन्होंने वीडियो बना के लिया किन्ने बंदे सन जेडे अंदरों निकले, दूर खड़े होके ना, इस फ्राइडे को कितने बंदे उसके अंदर दाखिल हुए, कितने निकले, इनकी तरक्की इनकी आंखों के सामने तो रखें भाई। इतने मैनचेस्टर में आपके लोग हैं, जो आप 212 मुल्क में, लंदन में कितने लोग हैं और यहाँ कितने लोग हैं, इनकी टोटल तरक्की इनको दिखाई दे। अगर कोई जर्मनी में मेरी बात सुन रहा है तो इनकी इबादत गाह के बाहर टोटल इनकी जो तादाद है, आज फ्राइडे है, इनको दिखाई दे। गिनती के चंद लोग हैं, चाय की प्याली में तूफान आया हुआ है, दावे करोड़ों की बैतों के हैं, झूठ का पलंदा है, इतनी बात है। धोखा देने के लिए बस ये दादुशुमार।